Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is your biology lecture, class 9, unit number 4, part 4. Today we are going to learn about tissues. What are tissues? When a group of similar cells specialized for the performance of a common function, they form a tissue. यानी a group of cells जो हैं वो इकट्ठे होकर एक टिश्यू बनाते हैं. तो there are different type of tissues. First of all, we will study about the animal tissues. There are 4 major categories of the tissues: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. What is epithelial tissue? Epithelial tissue, it covers the outside of body and lines the organs and cavities. ये क्या होता है, ये हमारी जितनी भी ऑर्गन्स की लाइनिंग है और स्किन जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ epithelial tissue. The cells in this tissue are very closely packed together. यानी कि इसके जो सेल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए प्रेजेंट होते हैं. इस तरह से, इस फॉर्म में ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े, इनके दरमियान में स्पेस नहीं होती. द सेल्स इन दिस टिश्यू हैज़ मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेल्स. यानी सेल्स की शेप की बेस पर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज: स्क्वेमस एपिथेलियम, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated columnar epithelium and stratified squamous epithelium. What is squamous epithelium? It consists of a single layer of flat cells. ये सिंगल लेयर होती है एक फ्लैट सेल्स की, इसके ऊपर डिपेंड करता है. इट इज़ फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ये लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में पाया जाता है एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट. And what is cuboidal epithelium? Cuboidal epithelium, it consists of single layer of flat cells. ठीक है, it is found in kidney tubes, small glands, etc., where it makes the secretions. Columnar epithelium क्या है? They are elongated cells. Columnar epithelium, they are elongated cells, like इस तरह से इनकी long shape में होते हैं. It is found in alimentary canal, gallbladder, etc., where it makes the secretions. What is ciliated columnar epithelium? ये भी long cells होते हैं with cilia. इनके ऊपर cilia present होते हैं. Long cells with cilia are called ciliated columnar epithelium. तो it is present in the trachea, bronchi and Propul's mucus. Stratified squamous epithelium क्या है? It has many layers of flat cells. It is present in the lining of esophagus and mouth and also over the skin. ये इसका function क्या है? It protects the inner parts. What is connective tissue? Connective, as आपको नेम से ही पता चल जाएगा that it connects the organs. यानी connective tissue जो है वो serve as the connecting function. It supports and binds the other tissues. Unlike epithelial tissue जो है वो connective tissue has the cells scattered throughout an extracellular matrix. Common example of this tissue are cartilage. Cartilage जो है found around the ending of bones in external ear, nose, trachea, etc. Bone and blood. The adipose tissue found around the kidneys, under skin and in abdomen is also a type of connective tissue. इसका function क्या है? It provides energy and support the organs. ये है cartilage. Cartilage cells में ये rubbery matrix के अंदर cartilage cells present होते हैं and it is present at the ending of the bones. इसी तरह blood cells, plasma में blood cells हैं. बोन का अगर देखें तो बोन सेल्स और ये उसके इर्द गिर्द हार्ट मैट्रिक्स होता है. एडिपोज टिश्यू के अगर आप देखें तो फैट ड्रॉपलेट्स और ये इनके एडिपोज न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एडिपोज टिश्यू. नाउ मसल टिश्यू. मसल टिश्यू जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स. इस तरह से बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बंडल फाइबर्स. It is most abundant tissue in an animal. ये एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. The cells of this tissue have the ability to contract and relax. There are 3 kinds of muscle. यानी इनके फंक्शन के लिहाज से इनको 3 kinds में डिवाइड किया गया है. वो 3 kind के हम सबसे पहले है skeletal muscle. Skeletal और striated muscle are attached to the bones. ये bones के साथ अटैच होते हैं and their cells are striated यानी stripped form में होते हैं. इस तरह से ये skeletal muscle जो हैं they are found in stripped form.
एक स्ट्रिप्स फॉर्म में होते हैं एंड कंटेन मैनी न्यूक्लाई. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन्स. स्मूथ मसल्स हैं, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा. दे कंटेन द स्मूथ नॉन सिचुएटेड सेल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. ये क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट हो रही है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में मूवमेंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड की मूवमेंट है, दे कंट्रोल ऑल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस. कार्डियक मसल्स क्या हैं, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट. देयर सेल्स आर आल्सो क्रिएटेड बट देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल. इसके हर सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है एंड दे प्रोड्यूस द हार्ट बीट. स्केलेटल मसल्स जो हैं, दे आर वॉलंटरी इन एक्शन, यानी देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल. स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स जो हैं, दे आर इनवॉलंटरी एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल. व्हाट आर नर्वस टिश्यू? नर्वस टिश्यू ये है कि एन एनिमल सर्वाइवल जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट. जितने भी एनिमल्स हैं वो सब अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं. तो ये एबिलिटी जो है वो कहाँ से आती है? दिस एबिलिटी रिक्वायर्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यानी कि ये इसके लिए हमें ट्रांसमिशन रिक्वायर है, जो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो मैसेजेस कन्वे कर सके. तो ये मैसेजेस किसके थ्रू कन्वे होते हैं? इस फंक्शन के लिए देयर आर नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू जो है, दे फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन द ऑल द बॉडी पार्ट्स and perform this task. This tissue is mainly composed of nerve cells. ये एक नर्व सेल है, तो ये टिश्यू इन नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं, which are specialized to conduct the messages in the form of nerve impulses. तो nervous tissue जो है, it is found in brain, spinal cord and all the nerves. या क्वेश्चन ये है कि when you hear that epithelial tissue has a tightly packed structure, तो what function do you expect? Obviously जब हमारा जो एक टाइट जब बैरियर बन जाएगा तो इट मीन्स अ बैरियर एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन. तो उसका क्या मतलब है कि वो एक तो बैरियर का काम करेगा कि सम अदर मॉलिक्यूल्स को जो है वो जो हमें रिलेटेड नहीं है, अनरिलेवेंट मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम करेगा और प्रोटेक्टिव शीट बना देगा हमारे इंटरनल पार्ट्स के लिए. ये तो थे एनिमल टिश्यूज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लांट टिश्यूज. व्हाट आर प्लांट टिश्यूज? अकॉर्डिंग फिर जिस तरह से एनिमल टिश्यूज को कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फंक्शंस के लिहाज से कैटेगराइज किया गया है, इसी तरह प्लांट टिश्यूज को भी कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट. देयर आर टू मेजर कैटेगरी ऑफ टिश्यूज, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यूज. व्हाट आर सिंपल टिश्यूज? द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, यानी जो एक ही टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल टिश्यू. एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं? दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सके. द सेल्स आर थिन वॉल्ड, लार्ज न्यूक्लियस, स्मॉल एंड हैव नो वैक्यूल इनसाइड. दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग देम, यानी ये भी एक दूसरे के साथ जस्ट लाइक द एपिथेलियल टिश्यू के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एंड दे हैव नो स्पेस इन बिटवीन द सेल्स. तो देयर आर टू मेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स. एपिकल मेरिस्टेम्स क्या है? दे आर लोकेटेड ऑन द एपिस, यानी टिप्स ऑफ द रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट. व्हेन दे डिवाइड दे कॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट. तो ऑब्वियसली जो टिप्स पे हैं, जब वो डिवाइड होकर फर्दर सेल्स बनाएंगे तो दे विल कॉज एन इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट. तो इस सच ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ. इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ. तो व्हाट इज लेटरल मेरिस्टेम्स? लेटरल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड शूट. ये रूट एंड शूट की लेटरल साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं. बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स. तो दिस ग्रोथ इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ एंड देयर आर फर्दर टू टाइप्स, that is vascular cambium and cock cambium. vascular cambium क्या है? They are located between xylem and phloem. और cock cambium जो है, it is in the outer lateral sides of the plants.
यहाँ पर बॉक्स के अंदर आप देखें तो लिखा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस, यानी जो मेरिस्टेम इंटरकैलरी ये स्मॉल पैचेस की फॉर्म में अमंग द मैच्योर टिश्यूज के दरमियान प्रेजेंट होती है। तो दीज आर कॉमन इन ग्रासेस एंड हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवर्स। आपको पता है जैसे ग्रास है तो वो बाय हर्बीवर्स जो है वो यूज़ होती रहती है, तो उन पार्ट्स को जो पार्ट्स यूज़ हो जाए तो उनको रीजनरेट कौन कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Now, what are permanent tissues? Permanent tissues जो हैं they originate from the meristematic tissue. ये meristematic tissue से originate होते हैं and the cells of these tissues do not have the ability to divide. तो इनके अंदर ये ability नहीं है कि वो further divide हो सकें, ये permanent होते हैं। इनकी आगे further classified इनको किया गया है, further इनकी classification है, उसके बारे में पढ़ते हैं। First time जो है first is epidermal tissues. एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे कवर द प्लांट बॉडी। जितने भी प्लांट बॉडी है उसकी जो आउटर लेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज, और ये क्या करती है, दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू। ये बैरियर के तौर पर इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यू के दरमियान काम कर रही है, और इन रूट्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ऑन स्टेम एंड लीव्स क्या है, दे सिक्रीट क्यूटिन। क्यूटिन क्या है, द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स द इवेपोरेशन। यानी स्टेम और लीव्स के ऊपर जो है ये एक क्यूटिन सिक्रीट कर रही है। क्यूटिन का काम ये क्या है कि वो स्टेम और लीव्स पर से इवेपोरेशन को कम कर देती है। एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं दे हैव आल्सो हैव द सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल रूट हेयर एंड स्टोमेटा। इसके ऊपर रूट हेयर और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द सेल। नंबर 2 इज ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज क्या हैं? ग्राउंड टिश्यूज आर सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ये पैरेन्काइमा सेल्स से बने होते हैं, और पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं दे आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल, इनकी शेप जो है वो स्फेरिकल है बट फ्लैट। स्फेरिकल है बट फ्लैट हैं। दे हैव थिन प्राइमरी वॉल्स, इनकी थिन प्राइमरी वॉल्स होती है, एंड लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। लार्ज वैक्यूल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज दे स्टोर द फूड। और इन लीव्स दे आर कॉल्ड मेसोफिल एंड आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लीव्स में इनको मेसोफिल कहा जाता है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इन मेसोफिल सेल्स में हो रहा है। इन अदर पार्ट्स दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। What are support tissues? थर्ड टाइप क्या है? सपोर्ट टिश्यूज। अब प्लांट के मतलब फूड प्रोसेस भी हो गया, उसकी इन एंड आउट मूवमेंट भी हो गई, उसकी ग्रोथ भी होगी। अब कोई चीज़ तो है ना जो प्लांट को सपोर्ट कर रही है, तो द सपोर्टिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सपोर्ट टिश्यू। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। अब सपोर्टिव टिश्यू को फर्दर 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, कोलनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। कोलनकाइमा टिश्यू जो है दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स बीनीथ एपिडर्मिस ऑफ यंग स्टेम्स एंड इन मिडरिब ऑफ लीव्स एंड इन पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स। यानी कि ये हमें मिलते हैं यंग स्टेम्स में जो न्यूली स्टेम्स बन रही होती हैं, लीव्स मिडरिब्स में पाए जाते हैं, और पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स में। दे आर मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। इलोंगेटेड में इनकी शेप लंबी होती है विद अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स। तो इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कहीं से तो बहुत ज़्यादा थिक होती है और कहीं से कम थिक होती है, यानी अनइवनली थिकेंड है, फ्लेक्सिबल है, एंड देयर फंक्शन इज टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड। यानी इनका फंक्शन ये है कि पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लीव को सपोर्ट कर रहे हैं, और यंग स्टेम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है दे आर विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स। इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं। देयर सेल्स वॉल्स आर हार्डन्ड विद लिग्निन। लिग्निन मटीरियल इनमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ द वुड, जो कि वुड का मेन केमिकल कंपोनेंट है। तो मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। तो ये अपने आप को, इनकी जो शेप है ये ना तो अपनी शेप को लंबा कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये डेड सेल्स होते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। हमारी सेकेंड टाइप आ जाती है, पहले तो हमने पढ़ा सिंपल टिश्यूज, नाउ है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ
कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज हैं जो वेस्कुलर प्लांट्स में सिर्फ पाए जाते हैं। तो जाइलम टिश्यू क्या है? Xylem tissue is responsible for the transport of water and dissolved substances from roots to the aerial parts, यानी रूट से वाटर और जो अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं उनकी जो मूवमेंट है इट इज़ थ्रू द जाइलम टिश्यू। यानी अगर सॉइल से वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अदर मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनको एक प्लांट की अदर पार्ट्स तक, जैसे लीव तक है, यानी अगर ट्री अगर आप देख लें तो ट्री के अदर सब पार्ट्स तक, फ्लावर, फ्रूट, ऑल द पार्ट्स तक वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स को जो है वो पहुंचाना किसका काम है? इट इज़ थ्रू द जाइलम टिश्यू। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, क्योंकि इनकी सेल वॉल्स में लिग्निन प्रेजेंट होता है तो द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड। तो दैट इज़ वाई जाइलम टिश्यू आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। क्योंकि इनकी सेल वॉल्स रिजिड हैं तो इसलिए ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो 2 टाइप्स ऑफ cells are found in xylem tissue, that is basal elements and tracheids. Basal elements and tracheids जो हैं they have thick secondary cell walls, they lack end walls and join together to form a long tubules. ये हैं basal elements. Basal elements क्या हैं? सबसे पहले तो है they have thick secondary walls, cell walls. They lack end wall, इनमें end wall नहीं है and they join together to form long tubules. And tracheids are slender cells, ये cylindrical होते हैं, slender cells हैं with overlapping ends. इनके ends जो हैं वो एक दूसरे पर overlap, ये देखें, ये this is the end of a tracheid, तो it is overlapping to the end of the other tracheid cell. Now phloem tissue. Phloem tissue is responsible for the conduction of dissolved organic matter, यानी food between the different parts of the plant body. आपको पता है food is preparing in the leaves, तो लीव से अदर पार्ट्स तक जो ट्रांसपोर्टेशन है इट इज़ थ्रू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू कंटेन द सीव ट्यूब सेल्स, इसमें सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, ये देखिए ना, ये ट्यूब लाइक सीव ट्यूब सेल्स हैं। एंड कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स क्या है? आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल हैव स्मॉल पोर्स, ये है सीव ट्यूब सेल्स, इनके एंड वॉल पर स्मॉल पोर्स होते हैं। तो मेनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग सीव ट्यूब। तो कंपेनियन सेल्स जो है दे मेक प्रोटीन फॉर द सीव ट्यूब सेल्स, ये देखिए दे मेकिंग कंपेनियन सेल्स जो हैं ये दे आर मेकिंग प्रोटीन फॉर द सीव ट्यूब सेल्स। नाउ वी हैव ऑल लर्न अबाउट द प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, लर्न इट प्रॉपरली and do the exercise work. All the questions we have mentioned in it. So do your learning. Thank you. Allah Hafiz.